Today, a new topic. The topic name is gravitational potential energy. That is the concept of potential energy, gravitational potential energy. तो ये gravitational potential energy क्या है, फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ये हम लोग देखेंगे. फिर डिफरेंट लेवल्स पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी स्टोन है, अगर सर्टेन हाइट से अगर ड्रॉप कर दिया जाता है तो डिफरेंट पोजीशंस पे या डिफरेंट हाइट पे उसका मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, ये सब सारे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे या डिस्कस करेंगे. तो वन बाय वन. तो फर्स्ट द टॉपिक इज वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड है. 11th क्लास का फिजिक्स 6th चैप्टर. That is the concept of gravitational potential energy. Potential energy. So let's consider an object which is raised or uplifted to a certain height h. This is the ground level, the ground, that is zero level, and the object is raised to height, certain height. Let's see, let's consider h. Against the gravitational force, that is F, applied force or external force. This is the external force, and this object is lifted or raised under the influence of external force or the applied force. Then work is done by this external force against the gravitational force, and the gravitational force is what? Downward mg. Minus mg, because minus is why? Because of downward direction. This is, that is the work done by the applied force of the gravitational external force is mgh. The work done by the external force is given by force, external force into displacement h, and it is mgh. And this work done is positive because the force, applied force, is along the direction of the displacement. This is the direction of displacement, and so the work done by the external force is positive, and this work done, and again the work done by the gravitational force, that is mg, is what? Minus mgh. Work done by gravitational force is equal to minus mgh, and this is the work done by external force, that is plus mgh. And this work done by the external agency is stored in the form of gravitational potential energy. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सर्टेन हाइट तक अगर लिफ्ट करते हैं या उठाते हैं तो जो वर्क डन होगा अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस वर्क डन को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. अब फिर उस ऑब्जेक्ट को अगर उस स्टेज से यानी उस लेवल से अगर गिरा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था यानी जो वर्क डन हुआ था, वो वर्क डन क्या हो जाएगा? काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज किसी भी इस ऑब्जेक्ट को फिर अगर रिलीज कर जाता है, रिलीज कर देते हैं, रिलीज, देन व्हाट हैपेंस? ये यहाँ पे आएगा सेम लेवल पे, बट इट विल हैव सम वेलोसिटी. इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, भी फाइनल लिख सकते हैं. ये वेलोसिटी, दैट इज ये पोटेंशियल एनर्जी था. यहाँ पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था. अब यहाँ जो आ गया किस फॉर्म में आ गया? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आ गया. दैट मीन्स द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू kinetic energy, or kinetic energy is converted to
potential energy, and this is the conservation of energy. ये conservation of energy कह सकते हैं, that is energy is transferred from one form to another form. तो ये जो है वर्क डन हुआ, ये वर्क डन किस में आ गया, कन्वर्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये जो फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, Fx इक्वल टू ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, u इज व्हाट mgh हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा Fx से क्या होगा, डिफरेंशियल दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू, या dh ले सकते हैं, इज दैट h द टर्म ऑफ h, दैट इज dh एंड इट इज व्हाट mgh dmgh by dh, that is क्या आ जाएगा, minus of that is minus mg, that is the gravitational force. The gravitational force is what, that is negative derivative of the potential energy. तो negative derivative of the potential energy, that is negative derivative है, और potential energy का derivative है with respect to what, with respect to h height। तो ये जो potential energy जो वो क्या है, as a function of हाइट है, दैट इज डिस्टेंस, या जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा ऐसे क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेते हैं, नेगेटिव डेरिवेटिव, तो क्या आएगा माइनस mgh आ रहा है। mgh इज व्हाट, mg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देयरफॉर माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे याद रखना है कि नेगेटिव डेरिवेटिव हो जाता है किसका, तो यहाँ से हम देखेंगे वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो वो हम लोग देखेंगे। दैट इज वर्क डन इज व्हाट mgh, और ये mgh आ गया, एक्सटर्नल वर्क डन आ गया, और ये फोर्स जो आ गया है F ले सकते हैं, Fh इज व्हाट माइनस dh विद रिस्पेक्ट टू h, and by cross multiplication F h into dh is equal to what, minus du h. Now integrating both sides. Now integrating both sides by taking proper limits, या proper limits ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे F h dh, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डिफरेंशियल d u h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वर्क डन आ गया, दिस इज वर्क डन, F h dh क्या आ जाएगा, यानी 0 से h ले सकते हैं, तो ये वर्क डन आ गया, ये वर्क डन कितना होगा माइनस डिफरेंशियल इंटीग्रल बन जाएगा। ये कहाँ से है, u इनिशियल से u फाइनल तक कंसीडर कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ व्हाट u आ जाएगा एंड लिमिट इज u इनिशियल टू u फाइनल, एंड दिस इज माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये लिखेंगे। दैट इज वर्क डन इज व्हाट, दिस वर्क डन इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस वर्क डन इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल, यानी जब वर्क डन होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, चेंज आएगा, और ये माइनस चेंज आ रहा है, दैट मीन्स ये जो वर्क डन आ रहा है बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली यहाँ 0 हो सकता है, फाइनल पोटेंशियल कुछ mgh आ जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लोग यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग कंसीडर करें, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन ऑल्सो दैट इज वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अगर ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया, थर्ड इक्वेशन।
That is work done is change in kinetic energy and plus change in kinetic energy, and here work done is minus change in kinetic energy. So from conservation of मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंसीडर करते हैं. That is from 2 and 3, from equation 2 and 3 वर्क डन, ये दोनों इधर वर्क डन है, इधर क्या आ जाएगा, डेल के इक्वल टू व्हाट माइनस डेल डेल के इज व्हाट के फाइनल माइनस के इनिशियल विच इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इट इज रिटेन एज के इनिशियल के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल प्लस यू इनिशियल. ये हो जाएगा, तो के इनिशियल को इधर ले जाते हैं, यू फाइनल को इधर ले आते हैं, एंड इट बिकम्स के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल. ये आ रहा है, तो इसको अरेंज करते हैं. दैट इज यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल. ये क्या हो जाएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. ये क्या हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया. दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली, ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं. दैट इज जितना पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली है काइनेटिक एनर्जी का सम है, वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल हो जाएगा. तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टर्म था. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ देखेंगे, सर्टेन हाइट, अलग अलग डिफरेंट हाइट पे जो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया. दैट इज किसी पहले तो डायग्राम देख लेते हैं कि लेट्स कंसीडर ऑफ स्टोन, कोई भी स्टोन या ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं जिसका मास m है और एक हाइट h है फ्रॉम ग्राउंड से h हाइट में यहाँ पे है. दिस इज द ग्राउंड एंड एट द लेवल ऑफ h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है. अगर यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली क्या है, यहाँ पे भी ए पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे ए पोजीशन है, फिर यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे मान लेते हैं यहाँ है, और फाइनली यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर. एंड ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया. यहाँ पे वेलोसिटी बी ए क्या है, इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड सिंपली द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ये ड्रॉप कर दिया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, जिसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगा, नाम होता है. ये 3 अलग अलग पॉइंट्स है. तो यहाँ से आते मान लेते हैं एच हाइट पे है, ये यहाँ से आता है स्मॉल एच, और ये अभी कितना डिसेंड हुआ, ये अभी डिसेंड हुआ एच माइनस स्मॉल एच. दैट मीन्स लेट्स कंसिडर a block or an object of mass m at point A, which is at a height h, capital H, and is released or dropped simply. Then it descends from certain height h to the ground, and when the ball or the object hits the ground, it will have some velocity, final velocity. The final velocity क्या होगा, that is velocity v c क्या होगा. और यहाँ पे जब ये इंटरमीडिएट कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे सी, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी बी क्या होगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है एट ए पे, और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी एट बी पे क्या होगा, और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी एट सी पे क्या होगा. तो ये फाइंड आउट करना है. तो इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है, तो इजी है. सबसे पहले कि यहाँ क्या है, वेलोसिटी आदि की यहाँ 0 है, दैट मींस एट रेस्ट में आप सिंपली ड्रॉप कर देंगे. तो
एट पॉइंट ए इट विल हैव ओनली प्योरली पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास क्या हो गया? प्योरली पोटेंशियल एनर्जी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? लूज होगा, और जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्या होगा? इसका वेलोसिटी गेन होगा, यानी कि पोटेंशियल से क्या हो गया? यहाँ पे इस जब इंटरमीडिएट कोई पॉइंट है तो इसके पास क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी होगा कुछ, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कुछ सर्टेन हाइट पे जो स्मॉल एस यहाँ दिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी, जो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ भी वही मैकेनिकल एनर्जी होगा, यहाँ भी वही मैकेनिकल एनर्जी होगा, बट यहाँ से प्योरली पोटेंशियल होगा। अब जब ग्राउंड पे हीट करेगा, बिफोर हीटिंग इट विल हैव प्योरली काइनेटिक फॉर्म, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन कोई इंटरमीडिएट पॉइंट होगा यहाँ पे, जो कि उसके पास क्या होगा? दोनों होगा, पोटेंशियल होगा और काइनेटिक, लेकिन दोनों टोटल एनर्जी जो होगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। जहां ये था, ये था, ये। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एट पॉइंट ए व्हेन एन ऑब्जेक्ट of mass m is dropped under gravity, and then it will have final velocity before hitting the ground, so case first, that is at point A। पहले हम at point A कंसीडर करते हैं, where V A is what? 0, so kinetic energy at A is what? 0, because half mv square, तो A 0 है, and potential energy H कितना है? तो potential energy PE, potential energy that is U equal to कितना है? UA इक्वल टू कितना आ जाएगा? U इक्वल टू हो जाएगा mgh, मान लीजिए क्या हो गया? प्योरली पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, प्योरली पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे आया। नाउ व्हेन द बॉल और द ऑब्जेक्ट डिसेंड्स टू अ सर्टेन हाइट h minus h, then it will have velocity at b। तो वेलोसिटी कितना होगा? दैट इज वेलोसिटी यहाँ पे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2g, और कितना है? h माइनस h। ये तो 0 है, तो यहाँ क्या करते हैं? एट पॉइंट बी कंसीडर करते हैं, एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये आ गया, दैट इज वी बी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 2g h माइनस h, और वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2g h माइनस h हो जाएगा। ये वी बी यहाँ वेलोसिटी आ गया। देयरफॉर एट पॉइंट बी पे क्या होगा? पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज या कह सकते हैं काइनेटिक, और यहाँ पे क्या हो गया? दोनों एनर्जी लिख सकते हैं, दैट इज ई जो होगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी UA प्लस KA, और UA कितना? ये तो 0, देखो क्या आ जाएगा? mgh आ जाएगा, यानी EA कितना आ गया? mgh आ गया। और यहाँ पे इसी तरह से EB कितना होगा? तो EB इक्वल टू जाएगा UB प्लस KB, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट P एंड काइनेटिक एनर्जी एट P। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी हाइट, यानी कि ग्राउंड से कितना हाइट पे? h हाइट पे, तो कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी टर्म, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mvb का स्क्वायर। अब यहाँ सारा सॉल्व करते हैं, दैट इज mgh प्लस हाफ m, और vb का स्क्वायर कितना है? vb का स्क्वायर 2g h माइनस h आएगा। 2g यहाँ से लिखते हैं 2g h माइनस h, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे mgh प्लस mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h।
तो mgh स्मॉल h माइनस और ये प्लस है, तो फाइनली क्या था mg कैपिटल H आ गया। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी एट B कितना आ गया, वही mgh आ गया, जो कि एट A पे था, एट A पे mgh कैपिटल H हो जाएगा, कैपिटल H। तो बी पॉइंट पे आप सी पॉइंट भी यहाँ कंसिडर करेंगे बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इसके पास क्या हो, कुछ वेलोसिटी आ जाए, वी फाइनल या वी सी लिख सकते हैं, तो पॉइंट सी कंसिडर करते हैं। At point C, that means the pole or the object descended to height capital H height पर डिसेंड कर जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल H, और बी ए कितना है, ये 0, जो कि हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये फॉर्मूला है, वेल नोन फॉर्मूला, दैट इज वी सी स्क्वायर इज व्हाट 2g कैपिटल H, एंड देयरफॉर वी सी या वी फाइनल कितना होगा, रूट अंडर 2g कैपिटल H हो जाएगा। अब ये आ गया, एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट सी, यानी कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट सी पे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू सी कितना आ जाएगा एम जी, और एच क्या है, एच 0 है, तो क्या है 0, ये क्या है एट पॉइंट सी, एट दैट इज बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी 0, एंड के सी दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ एम वी सी का स्क्वायर, तो हाफ एम हो गया और वी सी का स्क्वायर कितना हो गया 2gh, 2g और कैपिटल H, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया 2gh, दैट मीन्स ये आ जा रहा है 2 कट गया, दैट इज क्या हो जाएगा mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी कैसी कितना आ रहा है mgh आ रहा है, एंड हेंस मैकेनिकल एनर्जी C इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C, पोटेंशियल एनर्जी एट C इज व्हाट 0 and kinetic energy C is what mg capital H, and so mgh, this is the mechanical energy at C, और ये भी कितना आ रहा है mgh आ रहा है। So we can see that mechanical energy at A is equal to mechanical energy at B is equal to mechanical energy at C, all are equal to capital M, G और capital H. This is the टोटल मैकेनिकल है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्टेन हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो एवरी स्टेप, एवरी पॉइंट और एवरी लेवल द ऑब्जेक्ट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल इन एवरी स्टेप्स या एवरी लेवल्स। तो एवरी लेवल्स को ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है इक्वल है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी था, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसमें से हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 6.7, एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी से एग्जांपल से। तो उसमें से दिया गया है कि क्या एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉब है जो कि एक थ्रेड से उसको टाइट किया गया, और एक सेकेंड थर्ड जो है एंड वो सेकेंड एंड जो है वो क्या किया गया है एक फिक्स पॉइंट से उसको पिवोट कर दिया गया है। तो अब उसको क्या किया वर्टिकल डायरेक्शन में उसको विल्ड करेंगे, घुमाएंगे, तो अलग अलग पोजीशन पे जब होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटीज क्या होगा वो सब सारा हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।